ये लोग जो कुछ भी कर रहे हैं उसकी जिम्मेदारी इनकी खुद की है ना। तारीख है 11 अक्टूबर 2022, समय हो गया 07 डबल पिन 37 AM। चाहे इवेंका ट्रम्प हो चाहे मरियम नवाज शरीफ हो, अब इवेंका ट्रम्प का एक मैसेज आया है, वो कह रही है कि मेरे लिए उसने स्पाइडर का काम किया हुआ है। नाउ दिस इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सेव हर। वाई शुड आई सेव हर? वेरी सिंपली, शी इज़ अ कैनिबलिस्ट। आई एक्सेप्ट your son was kidnapped, that was not by me. That is because you belongs to you and your father belongs to a wrong network. You involved yourself in a wrong network. Then then no, 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 this is not my responsibility. This is not my responsibility. Anyone is from my network is doing a cannibalism. This is your responsibility. Now you have to. No, no, no. My order is, each and every order is written on Twitter. I will not allow you to be in my team. A person is someone is behaving like me, and then he thinks, okay, I will going to give him any kind of share. This is his fault, not my. Up, if someone comes to me and say he's a friend to me from my childhood, now he wants to share with me, and once he said so and so quotation to me, right now I'm talking to in my videos, so he's going to ask me money. No, 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 this is not going to be happen. Whomsoever he is, no, no, big no. No means no. No means no. No means no. I don't like to I don't like to waste my time to involve myself in any kind of discussion is given by these kind of wasteless wasteless persons. Simple. No, 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 no. Very simply. Whatsoever, if Modi's task was to run this nation, not to involve in any businessman to ask money. He is asking a kind of a ransom on behalf of government of India. Then in this case, the government of India has to answer. Definitely, definitely. Whatever is money is belongs to me. If I am saying JSR Securities are created for Indian Army, that means no. No, 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 no. It's never a meaning that JSR Securities asset and money is belongs to Indian Army. If I create it for Indian Army, they can take a supply from JSR Securities World. If they don't want a supply, then we are not working here. And the JSR Securities World is I created for my security only. From Kanyakumari to Kashmir. No, I don't believe in the security of Delhi Police and Indian Army. Yes, it's a completely private. Whatever, if Bharatiya Janata Party is there, that is
that is totally subject to run the nation by politically, not to pressurize any private businessman. Now you have to prove me just because you given me some government numbers. So I will surrender my money to government of India. What kind of this argument is this? Now, just to grab my asset and my money, if you are giving me an Indian Army's belt number and you will ask the JSR Securities and each and every money and asset and weapon is belongs to government of India and Indian Army, some of the personals like a GD Bakshi, yeah, definitely he is playing a double card. He is from Baradari, Pakistan. He is working for, because Pakistan contacted him during the war. Yes, Pakistan contacted him. Whatsoever, if I am helping Indian Army and Indian Prime Minister, is it a crime? In war with Pakistan. If Pakistan is thinking he will allow me to allow me or force me to marry with Rabi Pirzada and Maryam Nawaz Sharif and I will surrender the Kashmir to them? Are they stupid? No condition. No condition. No condition. No. This is not a condition. That is only personal relation. If Maryam Nawaz Sharif is thinking so, if she got married with me and visit to me and ask any kind of favor in Pakistan, fuck off. I will not consider any Maryam Nawaz Sharif and any Rabi Pirzada. Your political and personal interest is totally yours, not mine. And my nationalism is never on sale to Indian Army and to Modi and to Bharatiya Janata Party. No, it's never. Whatever is my condition, whatever, why? If I am in a hostage condition and I have proven it, no, if I am in a hostage condition and what are you saying? If I am in a hostage condition, it means nationalism is never suits to me. Who said so? Whatever was the intelligence way the Modi is using with the help of IB or a RAW or any governmental department, it's never a subject to my nationalism. Why should I pay any money to be a nationalist? Why should I? Should I have to bought a nationalism from government of India to talk in favor of my nation? No, I hate Pakistan. Yes, definitely. I hate Pakistan. Now the Modi and Modi team will ask me, no, I have to love Pakistan. Fuck off. Yes, till I die. I am committed to wipe out Pakistan like an every Indian. We hate Pakistan. I don't know any Baradari. I don't know any Islamabad and any Lahore. I don't know any Pakistani whore. Yeah. You know what was the first word is when Modi was asked by someone from the government of India.
Your copy will start from here. Write your first word. You know what he said? He said Pakistan. And Mukesh said Baradari. And he asked me, what is the word? First word for you. You like to say? I said Delhi. No Bihar. Delhi means Delhi. If Maryam Nawaz Sharif from Pakistan thinks so, she is going to fight with me with the ancient treasure of a Genghis Khan. Get off, madam. There is a government called China. Yes. Government of China. You are not fucking responsible by the ancient army. I don't care, and even I don't scared about your pippa and your slaughterism. Day by day I am daily getting a threat. I don't care. My money is completely secure in World Bank. First you have to reply to the government of Pakistan why you killed Nawaz Sharif. Yes. Oh, in just name of I recently married to you in a hotline. I'm not a Muslim. I'm going to save you. Shut up. I don't have even a 1 rupees for you. When I said 24 hour means 24 hours. Now it's your responsibility. Otherwise, don't try to be my PS. If you are not responsible to work for me, if you are working for me, then your nationalism and completely your honesty towards government of India and to India. Yes. Otherwise, say no to me. Why should I go to Britain and to America? Why? Yes, I have a house to live. Don't try to be that much smart. Then go and ready to cancel the argument. Then go and ready to be cancel the statement by your attorneys, Pakistan attorneys, when they lose the case in ICJ. Yes, I managed to register Pakistan. It was not a fault. Go and ask. It's an International Criminal Court of Justice law. Yes, and their judgment in my favor. And here in India, government of India, the earlier, it was designed by in 1947 by British government. They loses the case in ICJ. Yes, Britain also loses the case on the Article 17. Yes, because I pointed out. If I am ready to run the government on the president of India belt number, then provide me the money. Where is the money? Because you earlier demonetized it. Now if I am using my money from my personal from my pocket and my personal and a private money to run the nation, then who is going to be a president of India? And who is going to be a Samrat of India? That is me. Don't try to be smart. No, I am explaining you some of the person from the system, from a ADGPI, yes, and from Indian Army, and from Indian police system and administration.
If they're thinking so, they are very easily can get a money from me. No, I will not going to pay you even a 1 rupees. I know how to work for myself. Then go and reply to World Bank. I know what is the situation of demonetization and why the Indian rupees is against the dollar is going to 82. Open the real market, na. What was yesterday Ivanka Trump's statement? And what was the statement of Maryam Nawaz Sharif on a hotline? No, don't open the real rate of money. Pakistan currency, yes, is 3 times less in comparison of dollar. What is it? The reply of Pakistan in ICJ, we don't need any kind of special help from India. We know how to live. We don't need any kind of Walmart. We can be anytime cannibalist. Wah, bhai, wah. Pakistan can survive on cannibalism. And we do allow you to eat Hindus. Wah, bhai, wah. Yes, even we gave the Pakistan to create Pakistan nation for Indian Muslims, not Bangladeshi Muslims, not Saudi Arabia, nor Iran, nor Afghanistan. We gave the land to Indian Muslims to create Pakistan. If we found anyone is out from the India and anyone is not a Muslim from India in Pakistan, why should we allow them to be in Pakistan? Now you reply me. Maryam Nawaz Sharif and Nawaz Sharif is traveled from the Bangladesh to Pakistan. Whatsoever time since 1947. We will not in name of Allah and a Muslim. No, we don't know. We don't know. We gave the land to Indian Muslims. That land belongs to Indian Muslims. Then go to your land. Whatever is your history. No Jewish. That is a land belongs to us. Still that land belongs to us, not belongs to Iranians. Do you know what is happening inside the Pakistan? The Iranian and Afghanistani and some up from the Bangladesh came to Pakistan and from the Israel and they start eating Pakistanis. Means Indian Muslims. This is a reality. That's it. That's it. Indian Jewish, Indian Muslims can live there. Whomsoever belongs to Abrahamic culture, but it definitely belongs to India first. Not from anywhere else. Why should from Israel any Jewish will comes to Pakistan? Why? 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 Oh, why we allow Bangladeshi to be in Pakistan, and why we allow Bangladeshi to let eat Pakistani Indian Muslims in Pakistan?
with the help of cannibalism, you are killing their Indian Muslims and calling them muhajirs. I have a I have a fair enough argument to counter you all. It's a much better to forsake Hasina and not to produce our kids like in a pig. If you are producing the piglets, then that call back them to Bangladesh. And it was not, it's never a Bangladesh. It was a India also. No, 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 no. Big no. Big no. Hmm? So now you explain me. If you have a big knowledge, if you have a big knowledge, then you explain me. I'm listening. I'm listening. I'm listening. Then I will send Indian Muslim to Iran. Then I will send Indian Jews to Israel. Simply. And provide them security there. Yeah, definitely. I will send Indian son of Abrahams to other nation. I will send Indian Bangladeshi Muslims to Bangladesh and provide them security. Very simple. In name of Allah, in name of Muhammad, in name of Quran, or in name of Abraham. You decide. Hmm? बताओ और ड्रेस पसंद आई हाँ? बता यार कोई 10,000 कोई 5,000 कोई 200 कोई 800 since 1947 to till date their all families are involved in kidnapping innocent Indians and Pakistani citizens and eating their kids. And they are in system, they are in police, they are in army. I'm listening.
क्यों? मरियम नवाज क्या कह रही है? घर वर तो बनाए रखा है इसने, मैं आ रही हूँ, क्यों आएगी? जबरदस्ती शादी करी है, काम का गले पड़ रही है। तो रिप्लाई भेजा तूने, तो बाढ़ में जाते। काम का मरियम नवाज है, कहे चल घर तो बनाए रखा है वहीं रहेंगे। अच्छा जी, पहले पाकिस्तान में बैठ के बच्चे खा रही थी लोगों के, भारत में आके खाएगी? बेवकूफ़ समझा है। इतना फालतू दिमाग लेके पैदा नहीं हुआ मैं। तो क्यों जबरदस्ती? वो कैसे? मतलब तुम ये कह रहे हो, मतलब मैं नागिन से शादी कर लूं? हैं? आत्महत्या करने का कोई और तरीका नहीं है? आत्महत्या नहीं करता मैं। नो 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 नो, आई कैन गो ओनली ऑन a suicide mission only when Indian Army will provide me, sorry, when Indian Army provide me para ASF, yeah, in para ASF special squad duty. Yeah, that only, that time only I can allow myself to marry Maryam Nawaz Sharif and to Ravi Pirzada. Otherwise, no. Yes, if India, if United, no, my in London, in my Britain army, my number is a 29. Yes, yes. Slowly it's raising. Yes, on a special mission. Am I? Mission impossible. Then I'll only allow myself to let marry with a Ravi Pirzada and Maryam Nawaz Sharif, kind of cannibalist. ಇಲ್ಲ. चूतिया समझाएगा मेरे को? हद हो गई। तो रियलिटी बता ना। हमारे यहाँ नहीं होता ऐसे, हमारे यहाँ औरतें बच्चे नहीं खाती है। तो वो खाती थी तो उसकी माँ की, मुझे क्या पता, मैं उसके साथ थोड़ी सो रहा हूँ। अबे जिसके बगल में सो रहे हैं, वो कैनिबलिस्ट निकल जाए तो? या एग्जैक्टली। उसका क्या है, वो तो जैसे ही पता लगा कि अच्छा पैसे वाला है तो कर ले शादी। गोल्ड डिगर है बहन की लोड़ी। रावी पिर्ज़ा, मरियम नवाज, अब बहन की लोड़ी गोल्ड डिगर है। इवन का ट्रम्प। मैं इस माँ के बोथड़ा से मुंह पे बोल दूं मैं तो।
अब तुम पागल हो गए क्या तुम लोग? अब बच्चे मार मार के खा रही है वो, उबाल के कोई तल के। हैं? तो शादी कर लो। अच्छा। अच्छा। ओहो, अच्छा, भूखी शेरनी से तुलना करूं तेरी? पागल कुतिया से ना कर दूं? बात वहीं वहाँ वहीं आ जाएगी घूम फिर के। डॉक्टर फ्राइड का शिष्य है? नहीं, अच्छा, वो नहीं है। लड़का कुमारा था ना? अच्छा। अच्छा, ये है वो। इसमें तो मरियम नवाज कौन है? अच्छा, सजीदा अहमद। नहीं, वो तो ठीक है। नहीं, उसमें उसमें नेशनलिज्म है। उससे बात की जा सकती है। तो ये। अच्छा। मैं क्यों पढ़ूं इन चक्करों में? क्यों? मुझे मेरे मेरा मेरा टाइम बढ़िया कट रहा है। मेरा टाइम बढ़िया कट रहा है। मेरा टाइम बढ़िया कट रहा है। मैं क्यों दिमाग लगाऊं? हैं?
ये गेम जो है बहुत पहले खेला गया, अब भुगतो तुम। है? अच्छा। हाँ हाँ, वही मैं बता रहा था, ये जहाँ पे रिचुअल्स होते हैं ना, इनको पुलिस वाले भी नहीं मारते हैं, इनका लठ नहीं मारते पुलिस वाले जल्दी। मैं बताता हूँ तो विश्वास विश्वास पता नहीं करोगे नहीं करोगे। इनके प्रेत होते हैं, ये ना कुछ मंत्र चलाएंगे, फिर तुम्हारे घर में बीमारी। हाँ हाँ, बच्चे बीमार होना, एक्सीडेंट, ये सब होने लग जाएंगे। कैसे? इनका ग्रुप होता है पूरा, ये मंत्र भी चला देंगे, और उसके बाद ये क्या करेंगे, उस मंत्र को पूरा करवाने के लिए तुम्हारे घर के आगे गंदगी फेंक देंगे, घर के अंदर मौका लगेगा तो ताला खोल देंगे, चोरी चकारी, आपके ऊपर आपदाएं परेशानी ये सब आने लग जाएगी। इन ऐसा कोई इलाज मैं हूं ना, पर वाकई ये कुछ ऐसी पावर्स होती हैं कि बंदा बीमार पड़ जाता है। दिल्ली का ये नहीं है, छतरपुर में एमसीडी स्कूल, यहाँ वो सीआरपी वाले आए, चिढ़ गए, वो एसपीजी बना के चले गए। कुछ कैसे बनाई, आसपास के किसी बंदे को बुला लिया, बहाने से अंदर ही मार दिया, उसे रिचुअल कर दिया। अब रिचुअल कर दिया तो वहाँ होगी 10 15 20 50 लोगों के आत्माओं का रिचुअल कर दिया इन्होंने। मैंने चैम्बर खोल दिया, चैम्बर खोलने का एक खेल होता है बड़ा तगड़ा, मेरे से पंखे ले गए, मैंने वहाँ पता किसका, मुसाद का चैम्बर खोल दिया। वो भी बापों के बाप हैं, वो भी कैनिबलिस्ट हैं। मैं हूँ मुसाद, बस मैं मुसाद की ट्रेनिंग मेरी है ना, वर्ल्ड में मेरे से ख़तरनाक नहीं है बंदा मुसाद में। मैं करूँगा कुछ नहीं, बस मुसाद का चैम्बर ऑन कर दूँगा, गायब है बंदा। वहाँ मैं चैम्बर खोल के आ गया, बंदे हो गए गायब। और गायब होते के साथ पता है क्या हुआ, वहाँ एसपीजीज बन गई। जब आप जाओगे ना, आपको महसूस हो जाएगा कोई आपको छू रहा है। उन्होंने आपको छुआ नहीं, आप बीमार पड़ जाओगे। हवा महसूस नहीं होती, बाकायदा टच होता है। ऐसी जगहों को चेक कैसे करते हैं, मेरे को बोला इन्होंने, सीआर क्या कहते हैं, डिपार्टमेंट वाले थे, पता नहीं आए भी नहीं यार। रो ने मैसेज भेजा मेरे पास, सीआरपी का भी था, कि सर आप एक बार जो है आप स्कूल में विजिट करो, स्कूल खुलने वाला है बच्चों का। अच्छा, बाउंड्री के अंदर नहीं जा सकते आप, जो अंदर रह रहे हैं उनको तो पता है, उन्होंने डेड बॉडी छुपा दी होंगी, अब ढूंढनी है अंदर। एमसीडी बच्चों का जो स्कूल है, वही तो कोविड है, बीमारियां उसी तरह, कोविड में 19-18 तरह की बीमारियां हैं। अब वो छुपा रखी है। मैंने क्या करा, मैं चुपचाप गया यहाँ से, मैं कहा यार अंदर जा नहीं सकता, अभी बच्चों का स्कूल खुलने वाला है। मैंने क्या करा, एक ताश का पत्ता ढूंढा, ठीक है, और बाउंड्री के बाहर से जो है ना अंदर फेंक दिया। अंदर फेंकते ही आवाज़ें आनी शुरू हो गई। हाँ हाँ, ये सब गायब हो रखे हैं ये गलती से मेरे मुसाद के चैम्बर में फंस गए। हवा में आवाज़ बने घूम रहे हैं और कुछ नहीं है, ईमानदारी कह रहा हूँ। ये तो मैं घंटा नहीं मिलने वाले पूरी ज़िंदगी, आवाज़ बना के छोड़ दिया इनका मैंने। फिर मैंने क्या करा, वहाँ से जो है ना बाहर से, बाउंड्री के अंदर एक अलग चैम्बर है, और बाउंड्री के बाहर कुछ और, मैंने बाहर से एक कार्ड फेंक दिया अंदर। नहीं, हमारे हाथों में मंत्र कुछ और होते हैं ना। चैम्बर ख़त्म। जब उससे पहले एक दिन मैं जब स्कूल के सामने से निकला ना, मैं उसी समय महसूस हो गया, तब मैंने बोला, मैंने एसपीजीज हैं इसमें। नहीं अब तो ठीक है स्कूल, पर अब ये है कि अभी अंदर जा कर के जो है कमरा बता रहे हैं कोई,
कह रहे उस कमरे में जो है ना, वो सीआरपीएफ में नहीं था आज, क्या नाम था इसका, अशोक कुमार, उसकी डेड बॉडी रखी हुई है, सूख रही है वो। सीआरपी एमसीडी स्कूल लड़कियों वाले में कोई एक कमरा इन्होंने ना ब्लॉक करके रखा हुआ ऊपर, उसमें कुछ एक सीआरपीएफ के जवानों की डेड बॉडी सूख रही है, यही एमसीडी स्कूल में, वो चेक करना है मेरे को। स्मृति ईरानी को चूह के तौर पे पकड़ा हुआ था ना उन्होंने, चुड़ैल के तौर पे। मैंने कहा ठीक है भाई, मैंने कहा मेरी वर्दी आई कार्ड हथियार दे दे, नहीं मैं तो नहीं जा रहा ऐसे चेक करने। बिना उसके जैसे चेक हो सकता था कर लिया मैंने कहा है चैम्बर है, सब जानते हैं। उस दिन महरौली थाने में ज़्यादा बकवास कर रहा था मनोज 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 जो है, अब विनोद, मैं कलोड़ा ने गाली दे दी यार, मैं तेरी बहन की चूत, तू रुक। मैंने मुसाद का चैम्बर ऑन कर दिया, मैंने माँ चुदाओ बहन के लंडो, अब पंगे ले लो महरौली थाने में मेरे से भोसड़ी वालों, हवा में आवाज़ में नहीं घूमोगे बहन के लंडो। बना दी मैंने इनकी सबकी हवा में आवाज़ बना दी इन बहन के लौड़ों के, जा ना ले पंगे मेरे से। अब बेटा जिस दिन मंत्र चलाया ना मेरे पे वहां से, उसी दिन बहन के लोड़ा यहीं से चैम्बर खोलूंगा, गायब कर दूंगा तुम्हें भी। लोड़ा चूतिया मत समझना मेरे को, समझ में आ गई, मैं यूं जो बापों का बाप है। जारा छाणे बन रहे तो हाँ वही अशोक कुमार ओ करके जो यहाँ से मैं सारा देख रहा, मैं कहा तेरी बहन की चूत, तू नहीं मानेगा ऐसे। मैं कह रुक बहन के लंड, तेरी बहन मैं चोतता हूँ अभी। मैं ऊपर वाले रूम में बैठा हुआ था, बस यहीं से मैंने क्या कहते हैं चैम्बर खोला, यूं दिखा आईएस आईएस मोसाद, क्या चैम्बर खुला, जो धरती दिखती थी हल्की हल्की लाल। तेरी माँ का भोसड़ा, छुटते ही जब पहला रेजर पड़ा ना, मैं पूरी बटालियन के पता नहीं 10 या 15-20 बंदे आगे लपेटे में, रेजर पड़ते ही गायब बंदा की चूत काट दिया बीचों बीच, एक रेजर में मारे मैंने। उसके बाद इनकी माँ का भोसड़ा बहन के लंडों की होंगे, बहन के लंड कैनिबलिस्ट हैं भाई। बात मान जाओ, मैं नौकरी नहीं मांग रहा, माँ के लोड़ो, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है, ये मेरा काम है, समझ में आ गई। हम हैं एसएस के बंदे, स्पेशल सर्विस के लोग हैं हम लोग। यहाँ वो नहीं चलता खेल कि बंदा जो है पहुंच गया अंदर, माँ के लोड़ा गए काम से, मैंने अपना पूरा घर परिवार चला ले, मेरी वाइफ और बच्चों पे मंत्र चला लेगा, तेरी गांड में दम हो तो बीमार करके दिखाइयो। नहीं हमला तो कोई किसी पे कर देगा, नहीं मंत्र में करके दिखा। अच्छा हमला करना, हमले करने की भी सोच ले। ये तुम्हारा काम नहीं है भाई, हमारा काम है इन घरों की तलाशी लेना। ये जो बम ब्लास्ट हुआ ना जिस बिल्डिंग में, इसमें बहन के लोड़े वही तो कर रहे थे, रिचुअल ही तो था, ये पिप्पा रिचुअल ही तो था जब ब्लास्ट हुआ है। लॉकेट चैटर्जी ने करवाया था, मैंने दी रिपोर्ट इंटरपोल को। ये माँ के लोड़े सोच रहे बेटा ये ना औरतों के पीरियड बंद कर देते हैं बहन के लंडे, ये बहुत हरामी होते हैं, ये तुम्हें पता नहीं है। ये करते क्या है, वर्दियों में रहते हैं, अपनी प्रमोशन के चक्कर में किसी बंदे को पकड़ लिया, मार दिया, फिर उसकी आत्मा बुलाते हैं, ठीक है। हाँ वो होता नहीं है इनसे, ये हमारे काम है ना भाई साहब, ये हम करते हैं ना। मैं नहीं घुसा, मैंने तो बस वो ताश का पत्ता फेंक दिया, उससे पता होता क्या है, ये पढ़ते हैं पर देखते रहेंगे, ये ब्रेन नहीं होता इनके पास। ये है क्या, बोलते रहते हैं बोलते रहते हैं बोलते रहते हैं, सिर्फ रियलिटी है। ऐसे ही तो नेता बनते हैं। मोदी नहीं था बकासुर बोलता रहता था। भाई ये ड्यूटी मेरी है, मैं एसएस का आदमी हूँ, मैं पहले ही बता दिया था। हाँ ब्यूरो तो एक अलग मामला हो गया, एसएसबी कह ले, स्पेशल सर्विस ब्यूरो के लोग हैं हम, ये हमारी ड्यूटी है। ऐसी जगहों पे मत जाना, बात मान जाओ।
ये देखते रहेंगे कौन आया, उसके बाद ही इसका ग्रुप होगा, ये पूरा ग्रुप तुम्हारा घर परिवार को भी, तुम्हारे पूरे घर परिवार को बर्बाद कर देंगे ये। हाँ लिख ले भाई, मुकेश मंडल नाम है आपका। आपका बेटा जो है ना अर्जुन, उस पर हमला राम भज ने करवाया था, लिख लो भैया। जी हाँ, हाँ इन्वेस्टिगेशन आ गई है अर्जुन पे। बचपन में अर्जुन पे हमला राम भज ने करवाया था, लिख लो। राम, हाँ ये वही लोग हैं ये। मुकेश ने कोई काम मना कर दिया होगा अदालत में, ठीक है। बस मुकेश की वाइफ जाती थी बच्चों को स्कूल लेने, बस ये वो जा रहा था बच्चा, वो टाइमिंग देख के मारते हैं। हाँ हाँ, एसपीजी बैठा दी एसपीजी बैठाते के साथ जो है एक्सीडेंट कर दिया। रामभज लिख ले भैया, इंटरपोल की रिपोर्ट है भाई, क्या बात कर रहा है। कोई डिपार्टमेंट लिख ले, किसी में पूछ ले हितेश कौन है, एफबीआई लिख ले, एक्स फाइल से हूँ। रामभज ने हमला करवाया था तेरे बेटे पे। मामला क्या है वो तो बाद में पता करेंगे। फोटो चाहिए होगी तेरे लड़के की, और तेरी फोटो चाहिए, ले आइयो कभी भी। हाँ कल रिपोर्ट आ गई है। अर्जुन पे हमला जो है रामभज ने करवाया था। वो स्कूल नहीं था रामभज जिसमें बैठा रहता था, वही था। हाँ ये रिपोर्ट है, ऑफिशियल है, साइंड है। वो कैनबलाइज करना चाह रहा था, वो पिप्पे के चक्कर में था, वो पिप्पा मांगते हैं ना ये लोग, वही तो अलाउड नहीं है ना। तुम अपने रिचुअल में रहो ना। ऑफिशियल रिपोर्ट है। अब मुकेश मंडल में अपने बड़े भाई की बात कर रहा हूँ यार, उसके बेटे पे हमला जो है, अर्जुन पे हमला जो है, आर्यन पे हमला जो है उसने करवाया था, रामभज ने। वो हम अपने आप निपटेंगे ना, डाल दो केस आप, बोलो इंटरपोल की रिपोर्ट है सर। हाँ बोलो। एक को और ढूंढ रहे हैं, शायद उस पर हमला जो है ना सुदर्शन शर्मा ने करवाया है। और तेरे बड़े लड़के के पैर पे जो चोट आई थी ना, हाँ वही है। नहीं इंटरपोल से ही कहा था मेरे को, कह रहा पता कर भाई। ना ठीक है जी, कल भेजी थी टीम। आगे 5 मिनट का खेल होता है। लक्की की रिपोर्ट आ तो गई, लक्की की फाइनल रिपोर्ट मांगी थी मेरे से इंटरपोल ने, भाई फाइनल रिपोर्ट भेजो इसकी, मामला क्या है। मैं जो कुछ नहीं, अब आपने पूछ लिया तो बता ही देता हूँ। पेशी तो हमारी भी लगती है ना भैया। मैं कहा जी लक्की जो था ना जहर खुरानी में इन्वॉल्व था जी, इसलिए मारना पड़ा, और कोई बात नहीं है। बाकी कहानी, बाकी सब कहानी है सर, स्टोरी है। लक्की जो था ISBT आज़ादपुर, हाँ आपका नजफगढ़, बहादुरगढ़, ये एयरपोर्ट, यहाँ से सवार होने वाली बसों में सवार होने वाली सवारियों के साथ जी, इन सवारियों को जो है ना जहर खुरानी देता था। ये था विश्वजीत शर्मा, काके, अल्तमस, डाबला और नीरज चोपड़ा, ये कई लोग इन्वॉल्व थे। नहीं विश्वजीत शर्मा जो है क्या कहते हैं, अपने पुलिस के आई कार्ड पे काके को संरक्षण देता था और दवाई खरीद के लाके देता था। जहर खुरानी में इन्वॉल्व था जी ये, जी जहर खुरानी का गैंग चला रहा था, और जेब कतरों का। विश्वजीत शर्मा जहर खुरानी की वजह से मारना पड़ा जी इसको, और कोई बात नहीं है जी। नहीं दे दी मैंने इंटरपोल को फाइनल रिपोर्ट। उन्होंने मेरे से पूछा था ना बुला के, कह रहे यार ये विश्वजीत शर्मा की फाइनल रिपोर्ट पकड़ा दे भाई। कह रहे मामला तो बहुत है, मेन कारण क्या है भाई। मैंने कहा जी मारा मैंने है, कर वो तो हम जानते हैं यार, टीम ने निपटा दिया है इसको, पर कारण क्या है। मैं कहा जी जहर खुरानी था जी मामला। मैंने कहा जी ये मुनिरका के पास एक मेडिसिन की दुकान है दवाई की, वहाँ से दवाई खरीदते थे,
वो काके का जो ट्रेनिंग कॉलेज है उसके वहीं पे एक दवाई की दुकान है, वहाँ से दवाई खरीदते थे। और हाँ, वो दवाई आती है, पता नहीं कौन सी, ये तो नहीं पता मेरे को, एक बार उसने बताई थी, मैंने ध्यान ही नहीं रखी। तो वो दवाई खरीद के जो है ना इन NRIs को देते थे ये लोग, और फिर उनका सामान लूट लेते थे, जो कि पंजाब आते जाते थे। ये इस बात पे नज़र रखता था कि दिल्ली और पंजाब के बीच में आने जाने वाले NRIs जो है, हाँ जी, जो ये NRIs है ना, इनको जहर देता था ये विश्वजीत शर्मा उर्फ लक्की उर्फ रिंकू, इसलिए मारना पड़ा जी। नहीं, लगभग बंदे मार दिए, एक दो बंदे बचे हैं। नहीं, गैंग लीडर यही था जी। हाँ, तो बस यही रिपोर्ट थी, इंटरपोल को दे दी थी हमने रिपोर्ट। आपके लड़के की भी रिपोर्ट भेज दी इंटरपोल में, रामभज ने हमला करवाया था जी। होगा कोई मामला, मना कर दिया होगा, अब ये तो मुझे पता नहीं जी, वो तो कोई मामला होगा, काम से काम, सरकारी नौकरी में था, कोई प्रॉपर्टी कुछ मामला रहा होगा उस समय, यूनियन ऑफ इंडिया में था शायद। तो उसी के बाद से जो है कुछ बात रही होगी, तब इसके बेटे पे हमला हुआ था जी। उसमें जी इसके बेटे का ब्रेन हैमरेज, मतलब 40% ब्रेन हैमरेज हो गया था जी, 60% पे ही अलाइव था ये। बाद में फिर एम्स में रिकवरी हुई थी, नहीं अब तो ठीक है लड़का। उसके बाद 2 अटैम्प्ट और हुए थे जी लड़के पे, फिर बड़े लड़के पे अटैम्प्ट हुआ, पर वो अटैम्प्ट जो है शायद सुदर्शन शर्मा ने कराया, अभी उसकी जांच हो रही है, देखते हैं। नहीं नहीं, वही होता है, ये ड्यूटी हमारी होती है जी इनसे निपटने की। कोई हो जी, इनके घरों की तलाशी वलाशी सब, क्योंकि मंत्र इनके बहुत भयानक होते हैं, आप मानो या ना मानो भैया। नहीं जी, पुलिस वाले अरेस्ट लेंगे ही नहीं, चाहे कुछ कर लो। अरेस्ट लेते पुलिस वाला भी गया काम से। बेल्ट सर्विस में पता है क्या होता है, कमर बोल जाती है सर। हमें पता है ना कितने हरामी किस्म के लोग होते हैं ये। हाँ हाँ, आपके घर पे गंदगी फेंक देंगे, गंदगी कर देंगे, बच्चों को किडनैप करने की कोशिश करेंगे, रोड पे जाते हुए बच्चों को धक्का दे देंगे, बच्चा दौड़ रहा है तो पैर में जर्क मार देंगे, चोट आ जाएगी उसको। मतलब कोशिश ये रहेगी कि आपके घर को जो है परेशानियों में धकेल देंगे, अगर आप इनको जो है इनका काम नहीं करने दोगे तो। ये ड्यूटी हमारी होती है सर। अगर आपने इनके द्वारा बनाए गए हेड सर्वर, डेड बॉडीज़, हाँ डेड बॉडीज ही बोलते हैं, उन सबको अगर छुआ या निकाला तो ये फिर रोना पीटने लगेंगे, हमारा गुरु है, हमारी मेहनत है, ये है वो है। इनका इलाज जो है ना बड़ा, नहीं मेरा केस रजिस्टर्ड नहीं होता ना हमारे पे, नहीं मेरे पे केस रजिस्टर्ड नहीं होता है जी। हम चाहे हम तो सरेआम गोली मार देंगे, नहीं उसके बाद चाहे इनका ग्रुप कुछ भी करता रहे। नई उम्र के लड़के लड़कियां हाथ ही नहीं लगाएंगे जी, मैं जानता हूँ ना खेल क्या है। पुलिस वाले कमांडो हाथ नहीं लगाते इन्हें। सर ये वो खेल हैं जो पुलिस की वर्दी से और साधारण जिंदगी से बहुत ऊपर है। हाँ जी बिल्कुल सही है, मैं कह तो रहा हूँ ये बहुत अलग खेल है सर। आर्मी पूरे बटालियन को परेशान कर देंगे, अचानक बटालियन के पेट में दर्द, हैजा, मैं बता रहा हूँ ना ये क्या करती हैं, मोटे मोटे पेट की औरतें होती हैं, आप विश्वास नहीं करोगे ना, ये खेल है। तभी तो हमारी मुझे जब मैं बता रहा हूँ ना सर, जब मैंने ब्रह्मांड विजय पढ़ी, सारी पूजा पाठ कर ली, तो पहले पुलिस वाले जाते थे पंडित उमा शंकर शुक्ला जैसे लोगों के पास जांच के लिए, किसी न किसी। बाद में फिर पुलिस वालों ने मेरी तरफ रुख किया, कुछ एक ने, यार रितेश भाई से पूछ जरा यार, ये भी क्या कहते हैं, सीखता साखता है।
ठीक है, पर मेरा मेथड जो है इंसान नहीं मारता सर मैं, नहीं नहीं इंसान नहीं है सर, ना मैं खाता। तो जब मैंने कुछ एक जांच दे दी, बड़ी जांच, तो उसके बाद से मेरे पीछे पड़ गए सारे, अरे कितना बड़ा गुरु है, ये है वो है। अब मेरे को एक फोटो दिखा रहे थे, मैं बता देता हूँ, फिर बीच में मैं अखबार में ही फोटो होती थी, मेरे से पूछ लेते यार हितेश बताइए यार ये बंदा यार मिसिंग है, तो मैं बता देता भाई ये बंदा फला जगह मिलेगा या यहाँ मिलेगा। उसके बाद से मेरे पुलिस के बेल्ट नंबर ऑन हुए थे सर। ये है रियलिटी, बस मानो या ना मानो। आज किसने कि मैं जिसका फोटो सर्वर खोल दूं, हेड यहाँ तक कि हेड सर्वर खजाने, बड़े बड़े तांत्रिक मांत्रिक करते हैं, एंड ऑफ द डे खजाना ढूंढते हैं। मैंने बैठे बैठाए जो है क्या कहते हैं 17 राजा महाराजाओं का खजाना ढूंढ लिया। बिगाड़ लो, क्या बिगाड़ोगे मेरा। मोदी ने तो इंडियन गवर्नमेंट तक लगा दी सर, मेरा खर्चा पानी रोकने के लिए। कह रहे देखते कैसे पूजा पाठ में बैठेगा। मैंने कहा, कह रहे हवन नहीं करने देंगे। मैंने कहा हवन, अच्छा जी। मेरे को जब मौका मिलता रहा मैं हवन कर लेता रहा जैसे मर्जी, बिल्कुल किए मैंने। अच्छा आप थे उस दिन वहाँ चाणक्यपुरी पे, बीड़ी पी रहे थे आप? अच्छा ठीक है, समझ गया मैं आपको। हाँ 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 ठीक है, समझ गया समझ गया समझ गया समझ गया। मैं समझ, आप उस दिन मेहरौली थाने आए थे ना SHO आप? हाँ ठीक है। तो वो तो ट्रेंड हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। वो तो फोटो भिजवा देना, मैं ठीक कर दूंगा। हाँ मैं समझ गया सर, पहचान लिया पहचान लिया। अब मेहरौली थाने में SHO, उस दिन वहाँ चाणक्यपुरी पे जो चालान करा था लड़कों ने, आप भी बैठे थे ना कुर्सी पे, जो कह रहे थे बीड़ी अगरबत्ती। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, समझ गया। हाँ हाँ यही यही रियलिटी है। अरे पंडित मेरे को कह रहा है कि तू पंडिताई में आ जा। मैंने कहा मैं नहीं आ रहा ना, दास है ना वो, दास है वो, उन्हें उसकी 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 पंडिताई में थोड़ी जाऊंगा। नहीं पढ़ रहा है वो अलग बात है, दास लगता है उसके नाम में। ले, तो पंडित उमा शंकर शुक्ला के बाद वो अयोध्या में दास बना ना, वो बड़ी छावनी में महंत झामू दास। और मुझे 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 दयानंद सरस्वती की का पद मिला है। वाह भाई वाह, इतना बड़ा बेवकूफ नहीं हूं मैं, शंकराचार्य मिला है मेरे को, इतना बड़ा बेवकूफ नहीं हूं मैं। ना ना ना, इतना बड़ा बेवकूफ नहीं हूं मैं। क्या नेबलेस नहीं हूं जी भैया। वो नहीं है कि मेरे घर में भी आकर के बंदा जो है अपनी जान की क्या कहते हैं वो के लिए गिड़गिड़ाता रहे कि कहीं ये ना मार दे। ये सब नहीं होता है, आराम से आ जा, कोई दिक्कत नहीं है, ये काम नहीं करते हम।
धोखे से किसी को काट दिया, मार के, कोई अपने बच्चे को लेके आया तो उसका बच्चा पसंद आ गया, खाना है उसे, कोई बीवी लेके आया तो उसकी बीवी पसंद आ गई, कहानी है ये सब बेकार की बातें। ये नहीं करता भैया मैं, ना मेरा कोई इंटरेस्ट है। हाँ ये जरूर है, एक आदत है वो बीड़ी पीने की, वो भी, और उससे ज़्यादा कोई दिमाग नहीं लगाता। मैं अपने आप में मस्त रहता हूँ, मैं किसी को मार के मैं मस्त, मैं खुश नहीं रहता, मैं अपनी खुशी में खुश हूँ बस। मैं किसी को दुखी करके मैं खुश नहीं होता, मेरे को मतलब ही नहीं है इस मामलों में। हाँ कोई मेरे से पंगे लेगा तो ले भाई, खोल दूंगा पूरी डिक्शनरी उसकी। मुझे क्या लेना देना, कोई दारू पिए चाहे भांग खाए चाहे गांजा पिए चाहे कोकीन है, पर अगर उसके गांजा भांग दारू से मुझे दिक्कत हो गई तो फिर समस्या है ना। अब पता कर लो आप, दयानंद सरस्वती जी ने जो है शंकराचार्य का पद दिया मुझे। हाँ वो, हाँ बिल्कुल है। लक्की पे, हाँ हाँ, जहर खुरानी का केस था। रजिस्टर्ड कहाँ से हुआ था? पालम, पालम थाने से, पालम थाने का था। एयरपोर्ट से ही उठाते थे टैक्सी में ये। क्या करेंगे फिर? नहीं यही रिपोर्ट है उसकी। मेरे से पूछा था, कह रहा है भाई तू सच सच बता दे यार, तू कहाँ घुमा रहा है सबको। मैं कहा जी ये है रियलिटी, कल की तो बात है। कह रहा रीज़न, कह रहा बात तो 36 है, कोई एक रीज़न तो तू भी सही सही तो जल्दी बताएगा नहीं। मैं कहा जी जहर खुरानी का केस रजिस्टर था उस पर। अरे ठीक है। कह रहे कह रहे फिर कह रहे फिर तू वही आदमी है, तू सही जगह काम पे लगा हुआ है। कह रहे ठीक है फिर। हाँ कह रहा केस रजिस्टर्ड था इस पर जहर खुरानी का। कह रहा पहला केस वही रजिस्टर्ड हुआ था इस पर। यार तभी से लग गया रहा डिपार्टमेंट। कह रहा इसकी फ़ोटो थी एक, और हाँ हाँ, जो माल बरामद हुआ ना, जिस एनआरआई का माल चोरी हुआ था, उसमें से कुछ सामान लक्की के पास बरामद हुआ था। बिल्कुल सही। क्या कौन चिल्ला रहा है? तो नहीं पता था फिर क्या माँ चुदवाने के लिए आप बीच में टैंटा कर रही है? नहीं पता फिर क्या माँ चुदवाने के लिए अपनी टैंटा कर रही बीच में है? तुझे नहीं पता था लक्की क्या करता था? हैं? लक्की ने खुद बताया था मेरे को क्या करता है कैसे करता है। मेरे को एक दिन कहा भी था, कह रहे कल चलेंगे, फिर दो दो तीन तीन दिन के लिए वो चला जाता था। मेरे को कहता था तू भी चल, मैं कहा देखेंगे भाई, मैं नहीं गया कभी। बिल्कुल पता कर ले। मुनीर का पे दवाई की दुकान, ठेके के बगल में जो दवाई की दुकान है अंदर, ना ना, एक तो उत्तपम वाला तो अलग है, वो कल्पकवाड़ी के क्या है वो क्या कौन सा थे वो, उत्तपम है ना, उत्तपम है, कौन सा है वो? मुनीर का में एक मार्केट है इसमें,
एक उससे पहले वाला जो है, पहली मार्केट जो है रोड पे ही, मिनी मार्केट जो है, छोटी मेन रोड पे ही जो है, मोटर ड्राइविंग कॉलेज है ना, उससे अंदर जाकर जो ठेका है ना, ठेके के दो ठेके हैं ना आमने सामने, नहीं एक ही है, उसके बगल में जो दवाई की दुकान है, वहाँ से लेता था दवाई लक्की और काके। छोटी छोटी टैबलेट आती हैं, उसे जो है चूर के ना ये जूस या उसमें पिला देते थे, बंदा सो जाता है। बड़ी भयानक दवाई होती है। बिल्कुल। काके कटवारी असराय में रहता है। चपड़ास। हो सकता है। ठीक है।